Hello, my dear students. Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to start a new unit. That's unit number third with title Digital Documentation. So, what is the digital documentation? Before going to start the digital documentation, let me tell you about the old days and earlier days. There were no computer systems available in our earlier days in 1900 in 1800, and at that time we used to print a document. How was this possible? It was all possible because of our typewriters. So typewriters were being introduced in the very earlier times, and they were used for typing a document, and which was replaced by electronic typewriter after that. And now this electronic typewriter has been completely replaced by our computer system, which you are seeing in every department, whether it is education department, whether it's health sector, whether it's any department in our locality. So computer system is there available, and computer system performs a lot of tasks like word processing, data processing, communication to communicate with one another, and from one computer to another computer we can send easily document, can send easily data and presentation, and which is the most common activities performed in office. So office productivity software is used to perform these activities effectively. So if we go on start, what is documentation, and what is it used for? Documentation is nothing, it's actually data which is to be entered in a computer system, and which resembles with a paper, with a sheet of paper which has well versed with text, and which has well versed with text, numbers, and another symbols or representations. So, if you look at our document, a document is a paper with written contents, and the process of preparing a document is called documentation. जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं वो एक पेपर की सूरत में होता है, और उसमें हम लिखते हैं कुछ विद रिटन कंटेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई भी लेटर लिखी हुई है सामने, तो ये एक शीट ऑफ पेपर है, एंड शीट ऑफ पेपर पे आपने कुछ लिखा, तो दैट वी कॉल एज डॉक्यूमेंट. एंड जो प्रिपेयर, ये जो प्रोसेस है प्रिपेयर करने में, कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन. सो वी नो दैट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिजिटली. सो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू कंप्यूटर. सो देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट विच वी कैन सी इन दिस यूनिट. सो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, इट्स रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस. तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो हमें कोई भी रिटर्न जो हमने लिखा है वो हमने प्रिजर्व करके रखना है आगे, मतलब फॉर द फ्यूचर. तो एक तो हमें प्रिजर्व करने हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और यूज्ड एज एन एविडेंस. अगर हमें कुछ सबूत के तौर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कल को, तो हम यही साबित करने के लिए हम निकाल सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, हम इजीली हम सेंड भी कर सकते हैं किसी को भी. तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये इट कैन बी लेटर्स या रिपोर्ट्स या थीसिस या मानूस्क्रिप्ट्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स या बुक्स एक्स्ट्रा. तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, वेदर इट्स योर बुक्स, whether it's your magazines, whether it's your newspaper, whether it's your journal, या कोई भी थीसिस रिपोर्ट्स हैं आपके पास, तो दैट आर नोन एज डॉक्यूमेंट्स. सो क्यों क्यों डॉक्यूमेंट्स हैं? क्योंकि वो एक पेपर हैं, और उसके ऊपर आपने मतलब रिटन लिखा है कुछ, तो दैट्स नोन एज योर डॉक्यूमेंट.
और इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डिसएडवांटेज, लाइक ये वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हैंड राइटिंग, या किसी की जो हैंड राइटिंग है वो मतलब सही नहीं है, तो वी आर अनएबल टू जज दीज काइंड ऑफ लेटर्स या सिंबल्स। तो ये जो कंप्यूटर है इसमें एक सलाहियत है कि ये जो लिखते हैं, कुछ भी लिखना है हमें कंप्यूटर पे, दैट easily we can easily able to understand the type of letters, symbols, text, and all kind of documents. तो with the advancement in computer hardware and software technology, क्या कुछ किया है कंप्यूटर सिस्टम में, जो हमने एडवांसमेंट की है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, लाइक हमारे कोई भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, प्रिंटर हैं या कम लाइक सीपीयू है या लैपटॉप्स हैं या कीबोर्ड्स हैं, या हमारे पास बहुत सारे स्क्रीन्स हैं। तो ये इनमें से हमने बहुत सारे एडवांसमेंट किए हैं। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आजकल आप देखते हैं। तो जो इसमें एडवांसमेंट हुई है, द प्रोसेस ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटेड टू कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, तो इसके बदौलत हम आज देखते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत सारी तरक्की हुई। बहुत सारे लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन आवर ऑफिस, लाइक अगर हमें कोई भी चीज़ मतलब हमें लिखना है कंप्यूटर सॉफ्ट, मेनली हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो हमें अगर कुछ प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हमारे लिए एक अलग सा सॉफ्टवेयर है, दैट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। और इसी तरह अगर हमें कोई डेटा मतलब किसी कैलकुलेशन करना हो तो हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, that are well versed with these kind of softwares, data entry softwares। तो ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं शुड possess द स्किल्स टू यूज़ द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद गुड टाइपिंग स्पीड। तो इसको एक सलाहियत होनी चाहिए कि अपने हुनर होनी चाहिए कि वो ये जो टूल्स हैं कैन हैंडल विद गुड टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्किल इज़ द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि ये जो जो हमारा सेकंड चैप्टर था कीबोर्डिंग स्किल्स, तो आपने उस पर मेहनत की, आपने उस पर लगातार काम किया, तो आपके सीधी सी बात है कि आपकी जो एक टाइपिंग आ गई, तो एंड यू कैन नाउ बी एबल टू वर्क इन दिस सॉफ्टवेयर। तो पहले आपको एक मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग तौर पे आपको आने चाहिए वो टाइपिंग स्किल्स। तो इसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो you can't hesitate in this software, and little care has to be taken while using the word processing software। तो एक टाइपिस्ट को क्या करना चाहिए, हैज़ टू हिट द स्पेस बार नंबर ऑफ टाइम्स टू अरेंज द टेक्स्ट। यही जो कुछ हमने भी देखा वहाँ से कौन कौन की किस किस फिंगर से आपको की प्रेस करने हैं वो आपको जहन में रखना है वहाँ पे वाइल यूजिंग। ये जो सॉफ्टवेयर इसमें पढ़ेंगे हम। तो ये एक ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पे कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना है हमें, और स्क्रीन, और हम देखेंगे कैसे हमें मैनिपुलेट है अपना डेटा वो कैसे करना है हमें इन सॉफ्टवेयर्स में। तो हाउ वी कुड अरेंज अवर टेक्स्ट, how we have to use our fingers for pressing any key on the keyboard। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये है एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन आवर कंप्यूटर सिस्टम विद द नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या कुछ करते हैं हम इस वर्ड प्रोसेसिंग से, इट्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर। क्या एंटर करते हैं हम अपने लेटर्स या वर्ड्स या सेंटेंसेस या टेक्स्ट को एंटर करते हैं या एडिट, फिर उस जो कुछ भी लिखा उसमें एडिट ला सकते हैं, मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, या फॉर्मेट या कुछ चेंज भी ला सकते हैं इजीली, या स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी वांट टू स्टोर इन
in our computer system so that we can use or we can modify it in near future, तो हम easily स्टोर कर सकते हैं हम। और रिट्रीव, फिर इसमें जो जो कुछ भी लिखा हमने वो इजीली हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब हम उसको देख सकते हैं इन फ्यूचर में, और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जो कुछ भी लिखा हमने, एक लेटर बनाई हमने या एक डॉक्यूमेंट शीट बनाया हमने, किसी ऑफिस के रिगार्डिंग हमने डिटेल्स लिखे हैं, तो उसको हम इजीली प्रिंट भी निकाल सकते हैं। किस में? वर्ड प्रोसेसिंग में। जी हाँ बच्चों, ये वर्ड प्रोसेसिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर, और ये एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हर एक डिपार्टमेंट में इसका जो यूज़ होता है। whether it's for business correspondence, whether it's in banks, whether it's in hospitals, whether it is in corporate sector, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी अ लेटर या नोट्स या रिपोर्ट। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर हैं, इट्स बेसिकली ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। क्या है? सॉफ्टवेयर जो हम यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। तो हम इट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, हम इस यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग, एक शुरुआत में क्या हुआ होता था, ये जो वर्ड स्टार हैं, वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास पहले ज़माने में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, वो कौन सा था? वर्ड स्टार। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे। कौन कौन से? तो हमारे पास एक जो हम टाइपराइटर यूज़ करते थे अपने बिगिनिंग में, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। कौन कौन? इनके साथ में टाइपिंग एरर। तो अगर कुछ कभी कभार हम लिखते थे, तो हमने 2 3 4 लाइन्स लिखी, तो फिर हमने एक और लाइन लिखी, तो उसमें हमने कुछ एरर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक की, तो हम उस स्पेलिंग मिस्टेक से हमें वो मतलब जो हमारा पूरा शीट था वो हमें हमारा ज़ाया हुआ होता था। तो उस शीट पे फिर काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस एक गलती की वजह से हमें शीट को चेंज करना पड़ता था वहाँ पे। तो ये तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस थी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक था। और टू सेंड सेम लेटर टू 2 or more persons विद डिफरेंट एड्रेस, और एक ही डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेंड करना होता 2 या 4 डेस्टिनेशंस पे, तो हम इजीली नहीं कर सकते थे। तो इट रिक्वायर्स मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स, क्योंकि हमें एक ये जो प्रिंट किया हमने, तो उसी को हम सेंड कर सकते थे दूसरे, ये जो प्रिंटेड था। तो अलग से अगर हमें और एक पर्सन को यही डॉक्यूमेंट सेंड करना होता, तो हमें यही डॉक्यूमेंट दोबारा से लिखना पड़ता था। ये एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस थी, क्योंकि हम मल्टीपल लोकेशंस पे हम सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर को मतलब डिलीवर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रिंट निकालनी थी, या हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइपराइटर की बात अगर हम करेंगे, तो हम एक शीट पहले लिखते थे, फिर उसी को भेजते थे दूसरे पर्सनस तक। तो इसी तरह हम एक शीट लिखेंगे या फिर ये भेजना होता है हमें किसी दूसरे पर्सन तक, तो यही शीट हमें दोहराना पड़ता था, फिर भेजना पड़ता था किसी तीसरे पर्सन या चौथे पर्सन तक। तो ये तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस थी। इसी तरह जो टाइपराइटर हैं, इट डज़ नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर सिंबल्स। तो उसका जो कीपैड था टाइपराइटर्स का, इट डज़ नॉट, यहाँ पे हमें सारे सिंबल्स नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि इसके कुछ लिमिटेड ही सिंबल्स थे, लेटर्स थे या अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे। तो अगर हमें कोई स्पेशल सिंबल प्रेस करना था या यूज़ करना होता, तो हम वो इजीली हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कीपैड था, इसमें अवेलेबल ही नहीं थी ये वाले कैरेक्टर्स।
तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और चौथा कौन सा है, इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग ए टाइप राइटर। तो टाइप राइटर का अलग सा एक फॉर्मेट होता था, तो उसमें हम अलग अलग से मतलब A4 साइज़ फॉर्मेट नहीं था, या कुछ मतलब हमारे मन के मुताबिक हम फॉर्मेट नहीं बना सकते हैं, या पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड हम उस हिसाब से नहीं बना सकते, क्योंकि टाइप राइटर में एक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड था, एक हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ, तो उसी में हमें काम करना होता। तो अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो टाइप राइटर यही एक था हमारे पास, जहाँ पे टाइप राइटर मतलब जो एक्स देता था हमें। तो इसके बाद है इन द ईयर 1974, तो ज़ेरॉक्स कंपनी, ये कंपनी ज़ेरॉक्स हैं, और इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, इसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इस हिसाब से इसने पूरा जो ये अटेम्प्ट किया, एक ये इसने मतलब सॉल्व किया बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए सम एक्सटेंट। मतलब ये जो हमारे पास मैनुअल टाइपराइटर था उस ज़माने में, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया ज़ेरॉक्स कंपनी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आते थे हमें वहाँ मैनुअल टाइपराइटर्स में, तो उसने एक किस्म का एक मतलब इनोवेशन की वहाँ पे टाइपराइटर्स में। तो ये आपको निकलेगा, एक लिंक है यहाँ पे HTTP, यहाँ पे www.computernostalgia.net में, तो आप देख सकते हैं इसके आर्टिकल्स क्या क्या हैं। तो ये इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, तो इसमें क्या होता था, इट्स पॉसिबल टू मेक चेंज इन द कंटेंट। तो हम चेंज भी ला सकते हैं, क्योंकि हम एक अगर हमने कुछ गलत किया तो हम उसमें चेंज भी ला सकते हैं। मेक मल्टीपल कॉपीज़ जो था, ये ड्रॉबैक था किसमें, दूसरे टाइपराइटर में, जो मैनुअल टाइपराइटर था हमारे पास, तो उसमें हम चेंज भी ला सकते हैं इजीली। तो हम वी कैन सी देयर मल्टीपल कॉपीज़ विद माइनर चेंज। तो बट एक लिमिटेशन था यहाँ पे, कौन सी लिमिटेशन, वो ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन। यहाँ पे हमें मिलता था स्मॉल स्क्रीन साइज़, तो हमारी जो स्क्रीन है वो बहुत छोटी है, और डिस्प्ले द कंटेंट्स। तो और इसका जो स्क्रीन है, तो इसके स्क्रीन में हम वी कैन व्यू ओनली 2 और 3 लाइन्स। और ये जो लेट 1970s में इंट्रोड्यूस किया नया एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ 1970s में। क्या हुआ 1970s में। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे कल। तो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।